What is worldview exactly? Worldview is a collection of commonly shared values, and therefore the term environmental worldview can be defined as collective beliefs and values that give people a sense of how the world works, their role in the environment, and right and wrong behavior toward the environment. If we are talking about the worldview, worldview is actually a collection of shared values. अगर हम बात करें worldview क्या है, so this is the aspect, what are our values, what are our common values to understand the other things, to understand the world, कि हमारे common beliefs क्या हैं, हमारा common sharing system क्या है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू, इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज, कि हमारे कॉमनली शेयर्ड वैल्यूज का कलेक्शन ही वर्ल्ड व्यू है. और एनवायरमेंटल वर्ल्ड व्यू जस्ट है कि जो भी हम सोचते हैं अबाउट द एनवायरमेंट, कि हमारा रोल क्या है एनवायरमेंट के लिए, हमारा कौन सा बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज राइट और रॉन्ग टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, what are our values, how we need to preserve and protect our environment, इसी को कहते हैं environmental worldview. जो भी हमारे common thoughts हैं, collective beliefs हैं in treating the environment, to understand the role of ours in protecting the environment, and understanding the behavior, human behavior towards the environment. This is called environmental worldview. So the worldview can be divided into two categories. ये environmental worldview जिसकी हम बात कर रहे थे, ये दो categories में divided है. The first is Western worldview and the next is deep ecology worldview. अब इन world view को भी हमने दो categories में divide कर दिया है, Western and deep ecology. So the first is Western. Western worldview, also known as the expansionist worldview, is human-centered and utilitarian view. Western worldview के according, human is the most centered. मतलब एक imagine कर लो, just imagine a diagram that all the living creatures are available with human as a center. ह्यूमन बीइंग सेंटर में और ऑल अदर लिविंग बीइंग अराउंड ह्यूमन बीइंग्स सराउंडेड हिम. प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. तो दिस इज द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू जहाँ पे ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है. द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू ऑल्सो एडवोकेट्स द इनहेरेंट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, accumulation of wealth, and unlimited consumption of goods and services to provide material comforts. अब वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, जबकि हम ह्यूमन को एक सेंटर्ड कैटेगरी दे रहे हैं, कि हमने ये मान लिया है कि सब कुछ ह्यूमन के यूज के लिए ही बना है, हमने ह्यूमन को सेंटर मोस्ट अप्रोच दिए. उसके अकॉर्डिंग क्या है, कहीं ना कहीं वी आर गिविंग द राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल टू अक्यूमुलेट द वेल्थ, to consume everything available on earth, unlimited consumption. अपने मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए हम सब कुछ यूज कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है अर्थ पे, एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी वेल्थ को. ये है वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, जिसमें हमने क्योंकि ह्यूमन को सेंटर मान लिया है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सेंटर्ड अप्रोच ऑल अराउंड द लिविंग बीइंग्स. अदर लिविंग बीइंग्स से कंसिडरेशन अगर करें हम, तो ह्यूमन बीइंग को सेंटर्ड मानते हुए हमने ये अप्रोच ले ली है कि ऑल द अदर थिंग्स, ऑल द अदर लिविंग बीइंग्स आर जस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमंस. वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ये अप्रोच है कि हमने ये कंसिडर कर लिया है कि सब कुछ ह्यूमंस के लिए बना है, सारे अदर क्रिएचर्स सिर्फ ह्यूमन को सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन को पूरा राइट है अनलिमिटेड कंजप्शन,
ऑफ द एनवायरनमेंट, जो भी उसे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए उसके लिए इंडिविजुअल को राइट है, दे कैन यूज अनलिमिटेडली द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ. According to the Western worldview, humans have a primary obligation to humans and are therefore responsible for managing natural resources to benefit human society. Thus, any concerns about the environment are derived from human interest. So, Western worldview के according, human की जो primary obligation है, जो primary understanding है, जो primary relation है, वो सिर्फ humans के साथ होना चाहिए, as per the Western worldview. तो इसीलिए ह्यूमन ह्यूमन को सर्व करेगा और उसके लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल ऑन द अर्थ हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस टू सर्व द ह्यूमंस, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट भी सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि ह्यूमन इंटरेस्ट को सपोर्ट कर सके. This is about the Western worldview. Now the next is deep ecology worldview. Deep ecology worldview is a diverse set of viewpoints that dates from 1970s and is based on the work of Arne Næss, a Norwegian philosopher, and others, including ecologist Bill Duvall and philosopher George Sessions. अच्छा, डीप इकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू था ये, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 1970s से इमर्ज हुआ था. 1970s में क्या लैंडमार्क हुआ था? द फर्स्ट टाइम वी हैव सेलिब्रेटेड द अर्थ डे, एक मास अवेकनिंग थी फॉर द एनवायरनमेंट. तो 1970s से कुछ सर्टेन व्यू पॉइंट जनरेट हुए जिसपे कुछ फिलोसोफर्स ने, कुछ इकोलॉजिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने फाइनली principles consider किए of deep ecology term आई. The principles of deep ecology includes both human and non-human life has intrinsic value. The value of non-human life forms is independent of the usefulness they may have for narrow human purposes. Richness and diversity of life forms contribute to the flourishing of human and non-human life on earth. Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs. Present human interference with the non-human world is excessive and the situation is rapidly worsening. अगर हम डीप इकोलॉजी व्यू की बात करते हैं तो डीप इकोलॉजी व्यू के अकॉर्डिंग हमें ये व्यू पॉइंट सामने आए कि वी नीड टू कंसिडर दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रिसोर्सेज हो गए हमारे, वाटर, सॉइल, इन सबको हमें उसी अकॉर्डिंग यूज करना है जस्ट टू फुलफिल आवर वाइटल नीड्स, जिससे हमारे सिर्फ वाइटल नीड्स पूरे हों. हमें इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है. पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए जैसे भी फूड प्रोड्यूस हो सकता है, तो सिर्फ वो वाइटल एसेंशियलिटी की जैसे ही कंज्यूम किया जाए, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है. क्योंकि ये डाइवर्स फॉर्म जो भी अवेलेबल है अर्थ पे, ये कहीं ना कहीं इसीलिए है क्योंकि ह्यूमंस के अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनकी नीड सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. अगर सॉइल नहीं होगी तो खाना भी नहीं मिलेगा, वाटर नहीं होगा तो कोई नहीं बचेगा. तो इसी तरीके से ये जरूरी था कि ह्यूमन अपना इंटरफेरेंस लिमिटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन के लिए वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें. ये था डीप इकोलॉजी व्यू, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के टोटली अपोजिट था. क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू क्या था, उसमें तो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच थी कि सब कुछ ह्यूमंस के लिए ही है. लेकिन इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ जो भी एग्जिस्ट करती है, they all are interdependent and we need to maintain that
richness available on the earth. जो भी diversity है, richness है, water है, soil है, mountains हैं, minerals हैं, हम सबको हमें just limited consumption to satisfy vital needs. सिर्फ हम हमारे vital needs को fulfill कर सकें इतना ही we need to consume that. Significant changes of life conditions for the better requires changes in economic, technological, and ideological structures. The ideological change is mainly that of appreciating life quality rather than adhering to the high standard of living. Those who subscribe to the foregoing points have an obligation to participate in the attempt to implement the necessary changes. अब सी जो भी changes आ रहे हैं लाइफ कंडीशंस में कि जो भी इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट हो रहे हैं उस वजह से कहीं ना कहीं वो इसीलिए किए जा रहे हैं बिकॉज वी वांट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वी आर नॉट appreciating or promoting or considering life quality. अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कहीं ना कहीं ये जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का ये सिर्फ इसीलिए है बिकॉज एवरीवन वांट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कंजप्शन पे बिलीव है जबकि बेसिक रिक्वायरमेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज से इजीली फुलफिल हो सकते हैं. सो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. वी आर थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल एथिक्स, वी आर थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड व्यूज. सो इट्स आवर ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट द नेसेसरी चेंजेस कि हमें कहीं ना कहीं इस थिंकिंग से डाइवर्ट होना होगा. वी नीड टू अप्रिशिएट क्वालिटी लाइफ रादर देन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So this is now our responsibility. Think which worldview needs to be adopted. अगर हम बात करें the time is now. जो भी इतने environmental fluctuations हैं, जो भी environmental changes हम face कर रहे हैं, so now this is the time to think that which worldview you need to be adopted. Western worldview जो कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है या फिर हमें डीप इकोलॉजी वर्ल्ड व्यू को अडॉप्ट करना चाहिए. अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, हमारी बात करें, अगर हम कहीं ना कहीं चलो ये मान लेते हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो कि क्या है एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है कि सब कुछ ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है. ह्यूमन इज ओनली प्राइमरी सर्व टू द ह्यूमन नीड्स. हर ह्यूमन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दूसरे ह्यूमंस के लिए, बाकी लिविंग क्रिएचर्स के लिए. तो इसी में क्या होगा हम सब कुछ खत्म कर देंगे जो कि हम कर रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू फेस द स्कार्सिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. सो उस स्कार्सिटी से बचने के लिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस इतने अफेक्ट ना हो, तो फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर अस ऑल्सो डीप इकोलॉजी व्यू इज नीड टू बी कंसिडर्ड. क्योंकि वही एक व्यू है जिसमें हमें ये समझना होगा कि वी ऑल आर interdependent. Animals हों, plants हों, human beings हों, other living organism हों, soil, water, everything, सबकी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं that are obviously for us but for other living beings also. So we need to respect that. We have that values in us. We have to follow the moral values to sustain, to promote the quality life.